स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। मच्छी बाजार रोड की चौड़ीकरण होगा अब पूरा। एक माह में उपयोग के लिए तैयार सड़क। रायचूर जिले की मच्छी बाजार रोड की चौड़ीकरण का कार्य 60% पूरा हो चुका है। रायचूर शहर के विधायक डॉक्टर एस शिवराज पाटिल ने माध्यम से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मच्छी बाजार रास्ते के चौड़ीकरण कार्य को जल्द ही संपूर्ण होगा और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अब इस रास्ते पर स्वच्छता और सफाई का कार्य नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ಬೋರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿ ಬಜಾರ್ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವ್ರಿಗವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೇಳಿದರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ರೋಡ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತೇವೆ. आज से लेकर लगातार आने वाले 5 दिनों तक होगी कोप्पल जिले में भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कोप्पल, गंगावती, कुष्टगी और यलबुर्गा इन जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते नगर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए चेतावनी दी गई है। चिकबल्लापुर शहर में गैस एजेंसी मालिक की गई है हत्या। मृतक की पहचान श्रीनिवास उम्र करीब 65 वर्षीय के तौर पर सामने आई है, जहां पर चिकबल्लापुर शहर के गौरीबिदनूर तालुका में स्थित बीसलहल्ली ग्राम में घटी है ये घटना। हत्या की वजह अब तक सामने नहीं आई है, मगर घटना पर पहुंची गौरीबिदनूर तालुका की पुलिस की ओर से मामले की पूरी कार्रवाई की जा रही है। ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮನೇಲಿದ್ದು ಹೊರಟ್ರು ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಬಾಮೈದ ಮಗನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಸರಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್, ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कर्नाटका के कोलाहार जिले में स्थित गद्दी ग्राम में मलभागी तालुका और नगली ग्राम में कोरोना वायरस के लिए सामग्री का वितरण किया गया है। ये कार्यक्रम जिला जेडीएस मुखंड मंजुनाथ के जन्मदिन के मौके पर सभी में राशन किट का वितरण करते हुए किया गया है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ JDS ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಆಲಮೂರು ಸೀನಣ್ಣವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣನವರ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ಬೈರ್ಕೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕರೋನಾ ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿತಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು कोरोना महामारी संकट की बीमारी से मृत्यु होने वाले लोगों के परिवार के लिए राज्य सरकार की ओर से 1 लाख परिहार धनराशि देने के लिए सरकार की ओर से घोषणा की गई है। तो इसी के चलते कोलाहार जिले में जेडीएस पक्ष की ओर से कोविड से मृत्यु होने वाले परिजनों के लिए 10,000 परिहार धन देने की घोषणा भी इस दौरान की गई है और आने वाले समय में ये कार्यरत में आने की इस दौरान बात भी कही गई और साथ ही साथ जिले में और ग्रामीणों में मौजूद लोगों में राशन किट का वितरण भी इस समय किया गया। ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ನ, ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,500 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಏನೀಗ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. कोरोना
काल में राज्य सरकार स्वास्थ्य परिसभा मजबूत करने की सोच रही है, लेकिन खड़गपुर में चंदीमारा अस्पताल की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न वार्ड में पंखे नहीं चलने की वजह से मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं। भीषण गर्मी में इस समस्या के कारण हाल बेहाल हो रहा है, जिसके चलते कई मरीज प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए मजबूर भी हुए हैं, तो दूसरी ओर अस्पताल में नहीं जा सकते तो वो हाथ पर हाथ धरे यहीं पर इस परेशानी को झेल रहे हैं। जबकि इन दिनों में विभिन्न बीमारियों का डर से भारी मात्रा में लोग अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कृष्णेंदु का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से ये दिक्कत हुई है। अच्छा, শরীর অসুস্থতা ভেতরে কারেন্ট আছে লাইন তো সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ खड़गपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के आनंद नगर में जल जमाव की समस्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इमारतों की लगातार अवैध निर्माण के चलते ये हालत बनी हुई है। लिहाजा बारिश के होते ही इलाके में पानी भरने लगता है, क्योंकि अवैध निर्माण के चलते नक्सी पहलू लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लेने आने वाले लोगों को भी समस्या से जूझना पड़ रहा है। घुटने तक जमा बारिश के पानी के बीच डरे सहमे लोगों को स्वास्थ्य केंद्र आना जाना पड़ता है। लोगों ने कई बार काउंसलर से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं हुआ है। हम यहाँ इंदा में जो आनंद नगर में आपका हेल्थ सेंटर है ना, अर्बन हेल्थ सेंटर, हम लोग वहाँ, मेरा ये वाला घर है, नीचे से पूरा सांप घुस जा रहा है, मोटा मोटा सांप घुस जा रहा है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं, पानी यहाँ से निकलने का कोई व्यवस्था नहीं, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना हम लोग को। छोटा छोटा सांप बिच्छू सब जो मतलब कि घुस जा रहा है घर के अंदर में, इंसान का रहना यहाँ दुश्वार हो गया है। आप लोग काउंसलर को बोले थे, कोई भी आया हर रोज सर सब? देखिए यहाँ कचरा फेंकाता है तो यहाँ का आदमी लोग ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन पानी इस तरीके से जम रहा है, सांप घर में घुस रहा है, उसका कोई नहीं, जहरीला भी सांप घुस जा रहा है अंदर में, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सांप घुस रहा है घर पे। सालों साल एक ही अवस्था, यही अवस्था। अभी कुछ दिन पहले ये सब ऑर्डर बना करके ऊंचा कर दिया। अरे पानी तो कम से कम निकलने का व्यवस्था करो, पानी निकलने का व्यवस्था ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा सोनकर है। पश्चिम मिदनापुर जिले की खड़गपुर शहर के खरीदा क्षेत्र में पुलिस चौकी के बाहर आज अमराबम पंथी द्वारा सरकार पर मोटरसाइकिल जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। लॉकडाउन में मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों की कमर लगभग टूट चुकी है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमत दिन ब दिन लगातार आसमान छू रही है। इन सभी घटनाओं की वजह से पुराने एक मोटरसाइकिल को जलाकर किया गया है सड़क पर विरोध प्रदर्शन। কি ছিল? আমরা বামপন্থী খড়গপুরের পক্ষ থেকে আজকে পেট্রোপণ্যের দাম এবং অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ ছিল। একদিকে পেট্রোলের দাম সেঞ্চুরি করেছে। यश तूफान के कारण विध्वस्त लोगों की मदद करने के लिए सुंदरबन के गोसाबा में पहुंचे कमर रथी मदन मित्रा करीब 2000 से लेकर 25,000 असहाय लोगों की तुरंत सामग्री जैसे खाने की चीज़ें, बेबी फूड, फास्ट फूड, पानी, दवाई जैसे चीज़ों को इस दौरान लोगों में प्रदान किया गया है। कई दिनों से सिलीगुड़ी के बरीविसाह में जहां पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के कारण लोगों की आवाजाही पर यहां पर परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके चलते इलाके के निवासियों की ओर से और वाहन सवारों को भी यहां पर परेशानी होने के कारण अब लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 180 साल से भी ज्यादा वर्षों से चली आ रही है पूजा, पूर्व दुर्गा पूजा। ये पूजा एक साथ 5 दिनों तक चलती है। दुर्गा पूजा के जैसे कि छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 5 दिन दुर्गा पूजा के नियम अनुसार और दुर्गा माता की मूर्ति को ही पूजा जाता है। ये पूजा पृथ्वी के सिर्फ 2 जगह पर होती है, एक वृंदाचल पर्वत में और दूसरी अरहिदा बृंदवासिनी ताला इलाके में। इस पूजा में हर दिन करीब
20 से लेकर 22,000 तक लोग दर्शन करने के लिए मां दुर्गा के इधर आते हैं। এই পুজো 100 বছরের কাছাকাছি, হ্যাঁ, কারণ এই পুজোটা মাঝে সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের সময় বন্ধ হয়েছিল, 1-2 বছরের জন্য বন্ধ হয়েছিল। তারপর আবার পূর্ণজি চালু হয়েছে স্বাধীনতার বছর অথবা তার আগের বছর থেকে এটা কন্টিনিউ আমাদের চলে আসছে এত বছর ধরে। এবং তার আগেকার যারা লোক ছিল তারা কত বছর করেছিল সেটা আমাদের কাছে আপাতত কোনো সেরকম নথি নেই, কিন্তু মোটামুটি আমাদের এই যারা পুরনো लोग। बीदर जिला औराद तालुका में किसानों में नहीं बांटा गया है खेती में उगाने वाले बीज, जिस पर आक्रोशित किसानों ने किया है विरोध प्रदर्शन। मामला बीदर जिला के औराद तालुका में स्थित करियकाल ग्राम का है, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए नगर में मौजूद कई किसान संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो सुनते हैं इस पर अधिकारियों की नाराजगी पर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। कर्नाटक राजा रहित संघಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಚರ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ರೈತಗನ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಬರೋದಿದೆ ನಾಡ್ದಿಗೆ ಬರೋದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಯಾ ಬೀಜನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ರೈತನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರೈತ ಏನದ ಅನ್ನದಾತ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇಶದ ಮಾಲೀಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಎಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಮಾಲೀಕ ರೈತ, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ರೈತನ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ। विजयपुर शहर में स्थित महानगर पालिका के अधिकतर मात्रा में मौजूद कर्मचारियों के बीच कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में सहायता के तौर पर जरूरी तौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री को बांटा गया। अब तक 25 से 30 तक सामग्री किट यहाँ पर बांटे गए हैं और इसके अलावा 500 रकम भी दी गई है। इस दौरान इस कार्यक्रम में कई संगठन के लोगों ने भी सहायता करने की सूचना इस दौरान सामने आई है। नगर पालिका हमारा कमिश्नर बॉस श्री हर्षा शेट्टी and myself, my name is Dr. Prakash Gulapgod, as working as a chief veterinary officer in Vijaypur city, but we distributed in presence of Jain Foundation and also corporation employees around more than 25 kits to our whoever applied the corporation license holders, maybe vegetable vendors, maybe fruit vendors, maybe around tea vendors, whatever may be there in so many lines. We have freely distributed around worth of more than 500 rupees food kits to our street vendors, and we have given the first dose of COVID vaccinations. राज्यभर में चली सीएम पद बदली के चर्चे में अब कोलाहार जिले में सचिव अंगार की ओर से कहा गया कि सीएम बदली नहीं हो सकता है, ये बस अफवाह है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पक्ष जो निर्णय लेगा या फिर हाईकमान के आदेश और फैसले के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि सीएम बदली होंगे या फिर नहीं। ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಷ್ಟೇ। ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ? ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಬದ್ಧ. ಅಲ್ಲ, ಸಭೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಅದು ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಯಕತ್ವದ ಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज हिंदी के साथ। एसएस न्यूज माध्यम के मंच पर हम कर रहे हैं ऐसे लोगों की तलाश जो उठा सके जनता के हित में आवाज। क्या आप में है वो जज्बा? तो अभी उठाइए फोन और करिए संपर्क नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, जिसके बाद जानेंगे कि क्या वाकई में आप में है वो बात। क्या कर सकते हैं आप न्यूज एंकरिंग से लेकर रिपोर्टिंग वाला काम? अगर हाँ तो देर किस बात की है? ज्यादा जानकारी के लिए हमसे